Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, everyone, for joining. Inshallah, let's just start the ahadith for today. A little recap of what we were doing in the last class. In the last few classes, we've been studying about a different mindset. We've been studying about how Islam tells us that our life in this world is just a transit point. हम traveler हैं and we're just moving past, and our final destination is something else. It teaches us to think about that final destination. It teaches us to focus and work for that final destination. हमने पैरेलल्स देखे थे कुरान पाक के अंदर से जो हमने देखे थे कि एक तरफ आपके पास आखिरत है और एक तरफ आपके पास दुनिया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि दुनिया जो है वो आखिरत सॉरी दुनिया के बनिस्बत काफ़ी बेहतर है। एंड हमें इनकरेजमेंट यही है कि हम आखिरत की तरफ अपना सारा फोकस रखें ताकि हम आखिरत को हासिल कर सकें। फिर हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से हम आखिरत को हासिल कर सकते हैं। So we understood the idea of the Akhirat bank, the bank where your currency is your amal, right? So we've been learning about these things, and we've been learning about how the things like our mal and our awlad are not going to be there in our qabr. They're not going to be there on our akhirah to help us. We will not be able to offer anything to Allah subhanahu wa ta'ala from this dunya except our amal. And we read in the Quran कि उस दिन आपको कोई चीज़ नफ़ा नहीं पहुँचाएगी, आपका माल औलाद नहीं नफ़ा पहुँचाएँगे, इल्ला कि आपका except what Allah has given you from qalb salim. And qalb salim के बारे में हमने यही study किया that that is something you get from amal. So what we've been doing since a few classes is to understand a very different mindset, a mindset that focuses on akhirah, a mindset जो decision लेने से पहले ये सोचता है कि ये decision मेरी आखिरत में किस तरीके से मुझे काम आएगा। जो मुश्किल डिफ़िकल्ट चीज़ें करने से पहले, जैसे कुरान पाक के अंदर हमने जब ये वाली हदीस पढ़ी कि fulfill the trust, do not betray the one who betrays you, यानी वो एक ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि आपके साथ कोई गलत करे बट आप उसके साथ गलत ना करें। और हमने कुरान पाक के अंदर यही पढ़ा कि जब कोई तुम्हारे साथ ईविल करे तो तुम उसको रिटर्न करो विद द बेस्टेस्ट एक्शन, एंड दैट दिस इज़ हार्ड बट नॉट फॉर द वन्स हू आर फॉर्च्यूनेट। So we studied how we should be framing ourselves. हम अपने अमाल किस तरह से फ्रेम करें? हमारे लिए उन अमाल को करना आसान किस तरह से होगा? वो अमाल हैं क्या जो हमें करने चाहिए? और हमें क्यों उन अमाल पे फ़ोकस करना चाहिए? So it's sort of अभी तक we've been doing that. इस सारी चीज़ों को रीइन्फोर्स करने के लिए this is another very beautiful and profound hadith. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, "मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन." The one for whom Allah Ta'ala yuridu comes from irada yuridu. So the one who for whom Allah Subhanahu wa Ta'ala does the irada that that person should be Allah does the irada for good, that this person should be blessed with khair, this person should be blessed with good. Then what does Allah Subhanahu wa Ta'ala do? He grants him deep understanding of the religion. Okay? This is a very profound hadith. Why? Because you need to understand that who is the one who is making an irada. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala. We all know Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. We all know that He is the sustainer. He is the all knowledgeable. He is the one who's literally the entire kainat is His creation, and everything He has power over everything. He has qudra over everything. We've seen that repeated in the Quran again and again. We've been taught the names of Allah subhanahu wa ta'ala, and the names tell you who exactly Allah subhanahu wa ta'ala is. We can't know exactly who He is, but only what He has told us about Himself. And what we do know about Himself is that He is the one who has ultimate Badshahi, right? And इस तरीके का
जो मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपके लिए कुछ खैर का इरादा करेंगे, ऑब्वियसली ही क्रिएटेड द एंटायर दुनिया, right? And not only the dunya is just a test. After this test, the reward that you'll get based on the accountability and everything, it's all a design of Allah. And in knowing all of that design, Allah subhanahu wa ta'ala is choosing what as the thing that he wants to give to someone he intends to do good for, that someone who he intends good happens to. What is he choosing? Is he choosing mal? No. Is he choosing औलाद? No. हम दुनिया में क्या होता है? वी फोकस कि कौन लोगों को हम बेचारा कहते हैं कि हाय बेचारे, किसी की यहाँ औलाद नहीं होती है अगर, तो हाय बेचारे, कोई गरीब होता है, हाय बेचारे। हम इन चीज़ों को हमने बिकॉज़ वीव गिवन देम इम्पोर्टेंस, किसी को दुनिया की आसाइश और आराम नहीं होता तो हम उनको हाय बेचारे कहते हैं, ठीक है? इवन किसी के पास हेल्थ नहीं होती बहुत अच्छी तो उनको भी लोग हाय बेचारे कहते हैं। But mainly the thing that people really consider others to be बेचारा or that उनके साथ बुरा हो रहा है लाइफ में, उनकी लाइफ इतनी अनफॉर्चुनेट है। Even people themselves think of themselves कि हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, हमारी ज़िंदगी इतनी अनफॉर्चुनेट है। When they don't have माल और औलाद, these are the things that make us feel that we don't have enough, that we aren't given the good things in life. What are the good things in life? Just Google it and write it down. What are the good things in life? Right? Unfortunately, even in this dunya, knowledge is no longer considered the good thing in life. We are moving in a world where knowledge is being aista aista pushed out. Pehle knowledge was important क्योंकि for knowledge itself because it gave you mental clarity, it made you understand the world around you. आपको बहुत सी sophistication, बहुत सी चीजें knowledge के through हासिल होती थी. Knowledge was knowledge for itself. फिर एक दौर आया जब एजुकेशन को मार्केटाइज कर दिया गया. When education became a industry, and that's where the knowledge became an industry, a product, a means of making money. ठीक है? And then knowledge became education, and that education was just focused on what's going to make more money. So, so in that time we saw कि जो subjects यील्ड नहीं करते ज़्यादा मनी, उन सब्जेक्ट्स की तरफ किसी की इतनी रग़बत ही नहीं है। लोग फ़ॉलो कर रहे हैं वो सब्जेक्ट्स जिससे उनको कमाने को मिलेगा। सो नॉलेज का पर्पस नॉलेज इटसेल्फ नहीं रहा, नॉलेज का पर्पस हो गया टू मेक मनी, ठीक है? तो उसका पर्पस जो है वो डिमिनिश हो गया। सो ऑटोमैटिकली पीपल स्टार्टेड letting go of any such discussion, any such topics, any such piece of knowledge जो उनको दुनिया में कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। कि ये क्या पढ़ रहे हो हिस्ट्री, ये क्या पढ़ रहे हो फिलॉसफी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स और लिटरेचर एंड ये सारे सब्जेक्ट्स तो इनका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है दुनिया में क्योंकि इनकी कोई मार्केट नहीं है, दे आर नॉट ल्यूक्रेटिव फील्ड्स, ठीक है? That is what happened. Because knowledge uh, was institutionalized, knowledge was marketized, or knowledge was industrialized. So we had that, and now even वो खत्म होता जा रहा है because now क्योंकि मकसद जो था वो माल बना दिया गया था. तो अब ये हो रहा है कि यार ये यूनिवर्सिटी की 4 साल की डिग्री से तो कोई फ़ायदा नहीं है. We can just learn these skills online through AI or we can learn these skills through YouTube channels and stuff and हम अपना portfolio build कर सकते हैं. And you should just completely omit the entire process of going through learning to get to something. And now the focus is jitni jaldi you can land a job. So even if you don't educate yourself, it's fine. ठीक है? Because मकसद was never education, it was just money. So that's where our dunya is going, right? Knowledge is slowly being sideswept, not important anymore, right? And even technical knowledge are important nahi hai. People will do the same thing in just a year, get some diplomas and start working because that's the maqsad of knowledge now. ठीक है?
लोग भी यही कहते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि इतनी तुम्हें पढ़ाया, इतना लिखाया है, तो तुम कमा क्यों नहीं रहे हो, राइट? या व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? जिसमें व्हाट डू दे मीन व्हेन दे से व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? इज़ दैट यू आर नॉट बिल्डिंग अ दुनिया फॉर योरसेल्फ। तब उस बच्चे को कहा जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? अपनी अपनी डिग्री ज़ाया कर दी। अपनी इवन औरतों को भी यही होता है कि दे गेट मैरिड एंड दे आर नॉट परस्यूइंग अ करियर एंड दे आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम व्हाट दे लर्न्ड, देन दे आर टोल्ड कि ओह! पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, डिग्री ज़ाया कर दी, इतना पैसा खर्च किया माँ-बाप ने, ज़ाया कर दिया इन्होंने, मतलब घर जाके हांडी-चूल्हा कर रही हैं। So this is the narrative in this dunya, that if you had knowledge, as if that knowledge in itself wasn't important. That knowledge was only important if it yielded dunya, and if it did not, then it's like even हमारे खुद के पेरेंट्स हमें यही कह रहे होते हैं कि आपने ज़ाया कर दिया, इतना आप पे इतना खर्चा किया इन्होंने, इनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वापस आके देखो कुछ कर ही नहीं रहे। एंड खुदा ना ख़ास्ता अगर वो बच्चा दीन की तरफ हो जाए और वो कहे कि मुझे एक मीडियोकर इनकम से मसला नहीं है, मुझे दीन की खिदमत करनी है, कि मुझे अगर आधी सैलरी मिल रही होगी फ्रॉम व्हाट आई हैव पोटेंशियल फॉर, इट्स फाइन इफ आई एम गेटिंग हाफ द टाइम टू एक्चुअली सर्व इन द खिदमत ऑफ द दीन, या अपने अमाल के अंदर। सो पेरेंट्स ही उससे रिबेल करते हैं कि ये क्या सेंस बना इस चीज़ का, ठीक है? सो वी आर लिविंग इन सच अ दुनिया वेयर नॉलेज हैज़ नो इम्पोर्टेंस, राइट? व्हेन यू राइट गुड लाइफ, नॉलेज इज़ नॉट देयर, ठीक है? बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द वन हू क्रिएटेड अस, द वन हू इज़ द वन हू हैज़ ऑल पावर ओवर एवरीथिंग, वो अल्लाह जब हमारे लिए खैर सोचते हैं, जब हमारे लिए खैर का इरादा करते हैं कि हमें खैर हो, हमारे लिए गुड हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इल्म देते हैं, नॉलेज देते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग वाली नॉलेज देते हैं। किस चीज़ की? दीन की। आप खुद सोचें, जब माशरे में से नॉलेज की इम्पोर्टेंस खत्म कर दी जाएगी, तो ऑटोमैटिकली लोगों का एप्टीट्यूड चीज़ों को समझने का कम होता जाएगा, ठीक है? एंड जैसे-जैसे उनका चीज़ों को समझने का एप्टीट्यूड कम होता जाएगा, तो ये तो दुनिया है ही, अल्लाह ताला ने इसको डिल्यूजन का लैंड बोला है, राइट? तो वो डिल्यूजन्स को जो है इस दुनिया में डिल्यूजन्स, उनको कैसे सी करेगा? हम व्हाट डज़ डिल्यूजन इवन मीन? दैट यू आर नॉट एबल टू सी पास्ट इट, बट यू आर एबल टू सी पास्ट इट व्हेन यू आर एबल टू थिंक। इसलिए कुरान बार-बार कहता है गौर व फ़िक्र करने को, सोचने को, तदब्बर करने को। बिकॉज़ व्हेन यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू आर नॉट एबल टू distill. You're not able to clean. You're not able to clear the right from the wrong. You're not able to see कि मैं इतना गलत और stupid फैसला अपनी लाइफ के लिए ले रहा हूँ, that I am running after the दुनिया, thinking कि मेरा फ्यूचर बन जाएगा, जबकि मेरा एक्चुअल फ्यूचर तो इस मौत के बाद वाला है। Simple analogies, the kind of analogies I've been giving abhi tak, are to show you that it is a stupid decision to run after the dunya, especially in your youth. ठीक है? Risk is already destined. You will get what you are destined for. You will not, death will not come to you unless you don't get every single penny of risk written for you. But to run after that, to do subha sham run after that, doesn't make sense. जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है उसके लिए अब आप भाग रहे हैं। मगर जो चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी है, जिस चीज़ की अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इट इट इज़ द वन जिसके लिए एफर्ट्स करना कैपेबल, उसकी मुनासबत का एफर्ट्स जो करेगा, वो अप्रिशिएट किया जाएगा। तो जिसके लिए अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं कि उसके लिए मेहनत करनी है, जन्नत में आप ऐसे ही नहीं दाखिल हो जाएँगे। आप इमेजिन करें ना, कैसे हो सकता है? ना सहाबाए कराम हमारी अकाबरीन ने जिस तरीके की अ खिदमतें और जिस तरीके की कुर्बानियाँ दी हैं इस दीन के लिए, और हम जो है बैठे-बिठाए पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी दुनिया की भाग में लगा दें और एंड में 2-3 तस्बीहां करके एंड में बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद इस्लाम की तरफ रुजू कर लें और हमें मुफ्त में जन्नत दे दी जाएगी। ऐसा अल्लाह ताला तो अदल करने वाले हैं ना, अल्लाह ताला कैसे ये कर सकते हैं? कुरान में बार-बार ये वाले पैरेलल्स भी हैं। बट हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि माशरे से एबिलिटी ऑफ थिंकिंग को ख़त्म कर दिया गया। जब नॉलेज वाज़ बिकॉज़ ऑफ मनी, सो जो भी फ़ील्ड हो, अब नंबर्स की फ़ील्ड है।
नंबर्स करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इवन इफ इट्स नॉट मतलब even if it's not yielding a lot of thought, but doesn't matter because it's making money. Whatever is making money, that's more important. Even if it is fostering a mindset that does not think. इसमें critical thinking ही नहीं है. You're monotonously doing the same thing every day. I'm not talking कि finance का पूरा field यही होता है. I'm just saying that आहिस्ता 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 वो सब हटाया जा रहा है. Sorry. आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज़ हमारी लाइफ से omit की जा रही है. जिससे we could have um, we could have had the ability to critically think and analyze things. क्योंकि thinking भी if you're gonna stop thinking, हम ये अभी आजकल पढ़ते हैं that if you keep on mindlessly scrolling on the internet, what happens is that your brain starts to rot. We see this all the time. But it's a very true idea that आपकी thinking abilities खत्म हो जाती हैं when you are not thinking, when you're doing something जिसमें आपने नॉलेज तक जो एक चीज़ है जो आपके ब्रेन के लिए फोस्टर करने के लिए है, उसी को आपने बना दिया है फॉर मनी. इट्स नो लॉन्गर फॉर ग्रोथ, नो लॉन्गर फॉर मेंटल इमांसिपेशन और लिबरेशन, राइट? बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ अब आपको जब अकल ही नहीं होगी, जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ही नहीं होंगी, जब आपके पास सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं होगी, तो क्या होगा? तो ऑटोमैटिकली आपको दीन भी नहीं समझ आएगा. आपको ये पैरेलल्स समझ ही नहीं आएँगे। जो इतना अगर वही कोई चीज़ एक सिंपल से सेंटेंस में बोलेगा, आप नहीं उसको समझ पाएँगे। यू वुड थिंक कि सामने वाले को समझ ही नहीं है। यू वुड थिंक अबाउट देम, इनको तो पता ही नहीं है दुनिया कैसे चलती है। क्योंकि आपने कितने साल गुज़ार दिए सोचे-समझे बगैर। आप बस वही कर रहे हैं जो दुनिया आपको बताती है कि ऐसे-ऐसे चलना है। आप उसी पे चले जा रहे हैं। सोच ही आपने अपनी माफ़ कर दी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। उसको अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाते हैं। उसके पास दीन की समझ आती है तो उसकी आँखें खुल जाती हैं। तो उसको समझ आ जाता है कि क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ़ के अंदर जो एक्चुअली कोई हमारे फ़ायदा नहीं देंगी आखिरत में, उन चीज़ों को हम फ़ोकस करे हुए होते हैं टू एंड उनसे कि उनकी वज़ह से हम डिप्रेशन में भी जा रहे होते हैं, उनकी वज़ह से हमारी दिन और रात की नींदें ख़राब हो रही होती हैं। हम हर तरह की एंग्ज़ायटी और प्रॉब्लम और एक अजीब-सी स्टेट में होते हैं, हम सुकून में नहीं होते। एंड वी आर एक्चुअली रनिंग आफ्टर दैट थिंग टू गेट सुकून। बट जब आपको दीन की समझ आती है तो आपको समझ आता है कि सुकून आपको असल में मिलेगा कहाँ। सो आपकी पूरी लाइफ जो है वो इतनी आसान और इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी हो जाती है जब आपके पास दीन की समझ होती है। कोई आपके साथ बुरा करता है, आपको उसमें मौका दिखता है अच्छा करने का और अल्लाह के सामने अपने नंबर बढ़ा बढ़ा लेने का। कोई आपको मौका दिखता है, कोई डेस्टिट्यूट या कोई पुअर दिखता है, आप उसको देने वाले बन जाते हैं। आपकी जेब में कम भी पैसे होते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि आपको ईमान होता है कि अल्लाह मुझे खिलाएगा। जैसे वो चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और वापस पलट के आती है तो पेट भरा होता है। वैसे ही अल्लाह ताला ने हमें भी वादा किया है रिज़्क देने का। तो समंदर के नीचे जो जो वो है, जो हमें पता भी नहीं है कि कौन से मेरीन लाइफ़ है, अल्लाह उनको भी रिज़्क दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं देंगे? तो आपका ये ईमान होता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है कि बैंक अकाउंट में पैसे कम होते जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई हैं फ्यूचर के अंदर, स्टॉक्स नहीं लिए हुए हैं, गोल्ड नहीं लिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई हुई हैं, कैसे होगा? नहीं होती है टेंशन। आप सोचिए टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आप अल्लाह पे तवक्कल करना शुरू हो जाते हैं। एंड देन आप जब अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको ब्लेस करना शुरू करते हैं फिर। और फिर आप अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स देखना शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में बरक़ा का कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमागों से निकाल दिया। एज़ इफ चीज़ों से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि बरक़ा अल्लाह देने वाली ज़ात है। किसी के 50,000 की आमदनी में भी इतनी बरकत हो सकती है कि वो बेइंतहा खुश हो अपनी ज़िंदगी में और किसी की 50 लाख की इनकम भी उसके लिए ज़ीरो हो सकती है। रिबा का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें ये दिख रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है।
बट एक्चुअली वो तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा। और सदका का कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है कि हम तो दे देंगे तो हमारे पास से कम हो जाएगा, पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मैं तुम्हें बढ़ा के दूंगा, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो हमारे कॉन्सेप्ट्स खराब हैं बिकॉज हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमने नॉलेज को उसकी वैल्यू ही नहीं दी, एंड हेंस हम उससे वो चीज ही नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे कि हम सोचें और समझें। ओके, सो this teaches us that our focus should be to foster our mental capabilities so that we are able to learn the deen in depth and understanding, and hence change our lives and the way we lead them. The next hadith connects a little bit to this, it just adds more layer to it. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. यानी indeed दुनिया मलऊन है, और मलऊन है हर वो चीज जो उसमें है, माफीहा, इल्ला एक्सेप्ट जिक्रुल्लाहि, अल्लाह की रिमेम्बरेंस, अल्लाह का जिक्र, वमा वलाहा, and whatever Allah loves or whomever Allah loves, وعالم أو متعلم, and someone with sacred knowledge जिसको ilm हो, or someone who is learning that ilm. Everyone else, everything else is mal'oon. Now what is mal'oon? Mal'oon comes from the word of la'ana, and la'ana is a very scary word, because if you see la'ana, it's again and again there in the Quran, and Allah Ta'ala says that la'nat ho mukazzibeen pe, la'nat ho काफिरीन पे, लानत हो मुशरिकीन पे। अल्लाह ताला की लानत जिस पे होती है, उसके ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना रहम उठा लेते हैं। We know how profound and how big Allah Ta'ala की सिफ्त of रहमत is. अल्लाह ताला बेइंतहा रहीम है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को कायम किया था, तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर से अपनी रैत वर्सेस रहमा में अल्लाह ने अपनी रहमा को अपने ऊपर गालिब कर लिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी ज़्यादा हम 70 माओं के जितना प्यार हमने सब बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अल्लाह ताला बेइंतहा रहीम है, अल्लाह ताला बेइंतहा माफ़ करने वाले और बहुत ज़्यादा करम करने वाले। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें, दुनिया की जो चीज़ें और दुनिया इटसेल्फ पर मेरी अल्लाह की लानत है। यानी अल्लाह ने कोई उसके ऊपर रहमत नहीं दी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया बना रहे हैं और साज़ो-सामान में लगे हुए हैं, और बहुत बड़ी आपके ऊपर अल्लाह की नेमत है ये आपकी, कि आपको बहुत ब्लेस हुए हैं आप, कि आप दिन और रात कमाने में लगा रहे हैं अपना, और बहुत सारा प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हैं। Sorry to say, but well, the Quran, the Deen doesn't teach us that. Unless obviously you're spending all of that wealth in the way of Allah. But if you were, then how would you be making those properties, right? हमारे नबी पाक गरीब नहीं थे. He had wealth. He had money coming from his businesses. He had money from all the, आप अगर स्टडी करें ना, the kind of इनकम स्ट्रीम्स जो आ रही होती थी उन लोगों के पास, वो कोई कम अमाउंट्स नहीं है। इवन आज के दौर में भी जो मेहर उन्होंने अपनी वाइफ्स को दिया है, वो एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है, जो नॉर्मल एवरेज मेहर ही नहीं है, आज भी नहीं है वो एवरेज मेहर जो उन्होंने उस वक़्त अपनी तमाम वाइफ्स को दिया था। So he had wealth, but he gave it all away in the way of Allah. That is why उनके घर में 2-2 दिन चूल्हा नहीं जलता था। इसलिए नहीं कि वो गरीब थे, इसलिए because he chose to not hold on to that money. आप अगर सहाबा कराम की सीरा पढ़ना शुरू करें, इतने इंटरेस्टिंग पैरेलल्स मिलेंगे। Obviously there were some sahabas who had big houses and who were making a lot of money through trading in wealth, but वो नहीं थे कि वो घर में अपना सेध के रखेंगे। वो कुरान में ऐसे लोगों के बारे में बहुत ही सख्त अल्फाज हैं कि अपना माल वो खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, उनको बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। वो कुरान में जिक्र है ऐसे लोगों का। तो there were sahabas who used to spend, but there were also sahabas who considered it like almost haram कि आप एक दिन से ज़्यादा की पैसा आपने अपने पास रखा हो। They used to like it, I think हज़रत अबू हुरैरा was इतना ज़्यादा वो सहाबाओं दूसरे सहाबाओं को अगर वो देखते थे कि वो मनी जमा कर रहे हैं और वो घर बना रहे हैं everything, that he used to be so harsh to them that Hazrat Usman had to ask him to leave the city. It like there is a lot in the seerah where you'll see where दोनों sahaba are correct, because the deen doesn't push us to make dunya our mehwar of life.
व्हाई? बिकॉज़ अल्लाह की लानत है दुनिया पे और दुनिया की हर चीज़ पे, एक्सेप्ट व्हाट थिंग? एक्सेप्ट ज़िक्र ऑफ अल्लाह। सो ऑटोमैटिकली एनीथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ अल्लाह, दैट्स उसके ऊपर लानत नहीं है, ठीक है? एंड देन इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर आप कमा रहे हैं वगैरह, बट दैट्स बिकॉज़ ऑफ लाइक इस्लाम ने उसको भी इनकरेज किया है आपके घर वालों पे खर्च करना। नियत का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस हदीस के अंदर, कि आपकी नियत अगर आखिरत वाली हो, तो हर अमल जो है वो क्या नाम है, इबादत बन जाता है। तो इबादत बेसिकली इबादत की चीज़ें आर नॉट मलऊन ऑब्वियसली। अल्लाह को जो चीज़ें या जो लोग पसंद हैं वो मलऊन नहीं है। अब वो कौन लोग हैं? उसके लिए हम ये कोर्स भी ले रहे हैं, उसके लिए हम कुरान को भी रुजू कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास अहादीस पाक भी हैं, जो हमें बताएँगे कि कौन लोग हैं, जो अल्लाह ताला जिनसे लव करते हैं, कौन है वली अल्लाह। सो वो लोग ऑब्वियसली मलऊन नहीं है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक द हदीस इन द प्रीवियस वन, someone with ilm or someone learning that ilm. Because the moment you start learning ilm and the moment it starts steeping in your heart, you realize that दुनिया में असल मकसद हमारा क्या है? हम क्यों भेजे गए हैं? एंड आप उस पे वर्क करना शुरू हो जाते हैं। एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग, अगर हम रिवर्स में जाएँ, स्टार्ट्स फ्रॉम यू लर्निंग एंड देन you get ilm, and then you become Allah's beloved, and you're deeply involved at all times in zikr of Allah. Zikr of Allah doesn't just mean कि आप तस्बीहात करते रहते हैं. Zikr of Allah is being cognizant, being aware of Allah, that every day in your life you are thinking about Him. When you see things, जब आपके पास सैलरी डिपॉज़िट होती है, तो यू डू शुक्र ऑफ अल्लाह एंड यू थिंक अबाउट कि मेरे पास अब पैसे आए, मैं फ़ौरी तौर पे अल्लाह की राह में इसमें से कुछ खर्च करूँ और अपनी आखिरत के लिए कुछ करूँ। आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आप पलट के बदतमीज़ी नहीं करते, ये सोच के कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे मेरे अल्लाह ने ये नहीं सिखाया, मुझे मेरे दीन ने ये नहीं सिखाया, मेरे नबी की ये सुन्नत नहीं थी। इस तरह की ज़िंदगी अगर आप जी रहे हैं, तो आप ज़िक्र में ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। Because you're constantly reminded of Allah, you're constantly thinking about Allah, you're constantly thinking about taking decisions that would be okay to Allah. That would be that would make Allah subhanahu wa ta'ala happy with you. You're always trying for the raza of Allah. That is also living a life of zikr of Allah. Because zikr means remembrance. It doesn't mean मुँह से recite करते रहना. It means to remember. ठीक है? जिसको आप याद कर रहे होते हैं, फिर आप काफ़ी इमेजिन दैट ना, जिसको आप याद कर रहे होते हैं, तो उसको आप पूरा वक़्त उसके बारे में सोच रहे होते हैं, राइट? सो that's the kind of life that you are leading. And that happens only when you learn ilm, and then you become a person who understands and then does amal on that ilm. And then Allah subhanahu wa ta'ala के आप beloved हो जाते हैं, because ilm आपको बताता है कि आपको कैसा होना है to be beloved of Allah. And then obviously इवेंचुअली यू बिकम अ पर्सन जो सुबह, शाम, उठते, बैठते, खड़े होके हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में होता है। क्योंकि हर वक़्त वो बंदे से आप बात भी करेंगे, तो वो नॉर्मल बातों में भी अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होगा। बैठे-बैठे अगर उससे आप नॉर्मल डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो वो आपको कनेक्ट उस बात को दीन से करेगा, उसको क्योंकि उसके पास इल्म है ना, तो उसको फ़ौरी तौर पे दीन से कनेक्ट करके वो बताएगा कि अल्लाह ताला ने भी देखो कुरान में यही फ़रमाया है, या ये देखो अल्लाह ताला ने इसी तरह से दुनिया कायम करी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने आखिरत रखी है। मतलब हर बात में उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दिखना शुरू हो जाएँगे। एट लीस्ट एवरी डे दैट पर्सन वुड बी टॉकिंग अबाउट अल्लाह, राइट? And these things are what are not mal'oon, but everything else is अल्लाह की लानत है उन चीज़ों पे। तो आप क्यों उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिसके ऊपर अल्लाह की लानत है? Do you want to be one of those people? That is something for us to think about. And this is the only way to survive this world जिसकी अल्लाह ताला के सामने इतनी भी हैसियत नहीं है कि एक मक्खी के पर की जितना वेट होता है, उतनी भी इम्पोर्टेंस दुनिया की अल्लाह के लिए नहीं है। इस दुनिया को कैसे सर्वाइव करना है, इस दुनिया को कैसे सर्वाइव करना है, इल्म हासिल करें और उसको समझें और उस पे अमल करें, अपने अमाल बढ़ाएँ, अपनी सोच सही करें, एंड सो दैट इवेंचुअली यू कैन बिकम अ पर्सन दैट अल्लाह वुड लव, एंड हेंस बिकम अ पर्सन जिसकी ज़िंदगी हनी की तरह स्वीट है, बिकॉज़ ही इज़ ऑलवेज़ रिमेंबरिंग अल्लाह। तो उसको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है उसका। क्योंकि उसे हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखता है और उसे बार-बार अल्लाह ताला का डिज़ाइन समझ आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया बहुत खूबसूरत कायम की है, जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो बेइंतहा जस्ट और बेइंतहा खूबसूरत है, और उसको हर बार ज़िंदगी से यही समझ आता है कि अल्लाह ही क्रिएटर है। क्योंकि वही उन्होंने कितना बेहतरीन, देखो दुनिया में क्या हो रहा है और इस्लाम ने ऑलरेडी इसका हल दिया हुआ था।
ऑलरेडी अल्लाह ताला ने इसके बारे में किया होता है। वो सिर्फ़ उसका माइंड जो है वो इसी तरह चलता है। he just keeps falling more and more in love with Allah. And then obviously he wants to do more to please Allah. जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको आप प्लीज़ करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा देते हैं अशद्दु हुब्बुल लिल्लाह, मोमिन जो है वो अशद्दु हुब्बुल लिल्लाह, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। वो होता तभी है जब आप इल्म हासिल करते हैं और आप उस इल्म के ऊपर अमल करने लगते हैं और आप देखने लगते हैं अपने इर्द-गिर्द अल्लाह ताला के डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस। आपको समझ आने लगता है कि अल्लाह ही हमारा हकीकी क्रिएटर है और मोहब्बत भी अल्लाह से होने लगती है कि उसने क्या खूब डिज़ाइन किया है। दीन कितना खूबसूरत है। हर चीज़ का दीन में जवाब है। हर मुश्किल, हर मसले का माशरे के अंदर दीन ने पहले से ही हमें सिखाया हुआ था हल। May Allah subhanahu wa ta'ala make us from amongst those people who actually understand the deen, who are blessed with the goodness from Allah to understand the deen, who are able to do amal on that deen, who are able to shift their mindsets according to that deen, who are able to become the ones that Allah loves, and who are able to make a life such that वो पूरा वक्त remembrance of Allah में रहे। और वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ अल्लाह से मोहब्बत में बढ़ते जाएँ, इल्ला कि उन्हें मौत आ जाए और वो उस हाल में उठाए जाएँ कि अल्लाह उनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। When you have any questions, inshallah, you can ask on the chat group, and I will end the recording now and upload this on YouTube.